Good evening, students. Today we are going to understand about the recombinant DNA technology. The next topic is the isolation and the separation of the fragments. So once we have got the restriction fragments of the DNA, then we can do the separation of them on the gel. Through the gel electrophoresis, we can separate those fragments which we have got. So this is the step separation of the DNA fragments by jet electrophoresis. So this is our topic. So you can see the separation and isolation of DNA fragments. The cutting of DNA by restriction endonuclease results in the fragments of DNA. When we have cut the DNA by using the enzymes known as restriction endonucleases, these enzymes have cut the DNA at a particular recognition sequence and at particular sites. So now it is up to us to separate these recombinant fragments, to separate these DNA fragments by a technique known as gel electrophoresis. So how we can do this by gel electrophoresis? What is the method of gel electrophoresis? You can see there is a diagram which is given here, and here in the instrument, a gray color shape gel is placed in between this slab, and in this gel is made up of agarose or agar, which is a organic molecule formed from the sea, extracted from the seaweed. It's a natural polymer. It can form gel-like, we can say, base or matrix through which the DNA fragments can move. So यहाँ पर इसमें जेल रखा हुआ है. इस जेल में वेल्स बना दिए जाते हैं, डिप्रेशंस बना दिए जाते हैं, जिसमें कोम की मदद से, जहाँ पर जो भी मटेरियल हमें सेपरेट करना है थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, उन्हें लोड कर दिया जाता है. तो डीएनए इधर लोड कर देते हैं वेल्स पे, और इस असेंबली को इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव तरफ जोड़ देते हैं. ऊपर की तरफ यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाया जाता है near the wells, and downside it is positive electrode. As you know, DNA is negatively charged, तो नेगेटिव टर्मिनल से वो रिपेल होता हुआ नीचे की तरफ अपोजिट टर्मिनल तरफ मूव करता है, एंड जेल में से वो थ्रू जेल सीड जैसा इफेक्ट देता है, छलनी की तरह, जिसमें से डीएनए क्रॉस करके अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है जेल पे. लार्जर फ्रैगमेंट्स ऊपर रहती हैं, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स नीचे रहती हैं, और ये अपने आप को साइज के हिसाब से इस जेल पे सेपरेट कर लेता है. So this method is the separation of the DNA fragments in the electric field, and where the DNA molecule is forced to move towards the anode under electric field. This is known as gel electrophoresis. Nowadays, most commonly used metric is saccharose, which is natural polymer extracted from seaweed. The DNA fragments separate, resolve according to their size through sieving effects provided by agarose gel. Hence, the smaller the fragment size, the farther it moves. जितनी छोटी फ्रैगमेंट होती है उतनी दूर तक हो जाती है. फिगर में दिख ही रहा है हमें, सबसे छोटी फ्रैगमेंट सबसे दूर गई है. Separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA in the compound known as ethidium bromide. Ethidium bromide नाम की डाई हम यूज करते हैं. हम डीएनए को पहचानने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ethidium bromide को यूज करते हैं, followed by an exposure to UV radiation. UV radiation में ये डाई डीएनए को ऑरेंज कलर देती है, ब्राइट ऑरेंज कलर देती है, और डीएनए इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है. ethidium bromide से स्टेन हुआ डीएनए आराम से हम विजुलाइज कर सकते हैं. इन द UV radiation it shows orange color.
and the separated bands of the DNA are cut out from the agarose gel. and अब हमने DNA को देख लिया है, तो अब हम DNA के बैंड्स को कट करके निकाल सकते हैं, एंड दिस जेल पीस से भी उसे जेल के मटेरियल को भी रिमूव कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको कह देते हैं इल्यूशन। इस स्टेप को इल्यूशन कहा जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. इस तरीके से जो भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें मिलते हैं उनको क्लोनिंग वेक्टर में जोड़कर और फिर हम इनकी मल्टीपल कॉपीज पा सकते हैं। सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में ये फ्रेगमेंट्स यूज हो सकती हैं। जब हम इसको वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट टूल है वो क्लोनिंग वेक्टर्स है। क्लोनिंग वेक्टर हम जानते हैं, वेक्टर हर उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो किसी चीज को कैरी कर रहा है, जो किसी चीज को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। तो क्लोनिंग वेक्टर, you know that plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. ये हमें पता है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस होस्ट डीएनए के इंडिपेंडेंटली सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने डीएनए मॉलिक्यूल्स को, बिकॉज दे हैव origin of replication. They can multiply their chromosome themselves. Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of their genomes within bacterial cells. तो जब भी बैक्टीरियोफेज, जिनको ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बैक्टीरिया उनके होस्ट होते हैं, उनके कॉपी नंबर हमेशा हाई होते हैं, बिकॉज वो एक सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं और 15 से 100 कॉपीज पर सेल वो बना सकते हैं। देयर कॉपी नंबर इवन गो हायर, इससे भी ज्यादा उनकी कॉपी नंबर हो सकते हैं। वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। और अगर हमने किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जोड़ दिया तो वो डीएनए भी इतनी बार, मल्टीपल बार कॉपी हो सकता है एंड हमें उसका भी कॉपीज मिल सकती हैं। तो इस तरीके से क्लोनिंग वेक्टर help करता है to increase the number of copies of the foreign DNA. And vectors are used at present, are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. So two reasons or two ways nowadays the vectors are designed, engineered. They are artificially made. They should provide two benefits. First is that फॉरेन डीएनए का इजी लिंकेज हो सके। इस तरह के वेक्टर मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं जहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हों जो हमें इजी लिंकिंग में हेल्प करे फॉरेन डीएनए की, और सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जो डीएनए फॉरेन डीएनए को कंटेन कर चुके हैं या जिन वेक्टर्स से फॉरेन डीएनए अटैच हो चुका है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आराम से इजीली सिलेक्ट करने की भी उनमें एबिलिटी होती है, आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स आजकल बनते हैं और ऐसे वेक्टर्स को लैबोरेटरी में आराम से बनाया जाता है जो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ आगे वेक्टर्स की और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की हैं। Following are the features that are required to facilitate cloning into a vector. ये फीचर्स हैं जो कि क्लोनिंग करने में वेक्टर्स में हेल्प करते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे ओरी बोला जाता है, this is a sequence from where replication starts and any piece of the DNA when linked to this sequence can be moved, made to replicate within the host cell.
ओडी एक ऐसा रीजन होता है किसी भी वेक्टर में जिसके आसपास कोई भी जो दूसरा डीएनए सेगमेंट अगर अटैच कर दिया जाता है तो वो आराम से रेप्लिकेट हो जाता है होस्ट सेल के अंदर। इस सीक्वेंस को रिस्पॉन्सिबल बोला जाता है रेप्लिकेशन कराने के, और कॉपी नंबर भी कंट्रोल करने के लिए ओडी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, अगर किसी को बहुत सारी कॉपीज चाहिए किसी टारगेट डीएनए की, फॉरेन डीएनए की, तो उसे ऐसे वेक्टर में क्लोन करना चाहिए जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हाई कॉपी नंबर को कंट्रोल करता हो। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का इंपॉर्टेंस हो गया। सिलेक्टेबल मार्कर, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। तो ओरी के साथ साथ वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर जीन होनी चाहिए जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है रिकॉम्बिनेंट्स को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट्स। जिन बैक्टीरियाज में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो वो स्पेशल एबिलिटी प्लाज्मिड वेक्टर में होनी चाहिए जिससे कि वो बैक्टीरियाज जो उस वेक्टर से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जिन जिन बैक्टीरियाज ने वो वेक्टर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स बैक्टीरिया हो गए। उन बैक्टीरियाज को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बैक्टीरिया से इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए ऐसी जीन्स होती हैं जिन्हें मार्कर जीन्स बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। ज्यादातर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह काम करती हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इस प्लाज्मिड में भी आप देख पा रहे हो पिंक रीजन्स जो इस प्लाज्मिड में दिख रहे हैं वो मार्कर जीन्स के रीजन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेशन से पीस ऑफ डीएनए का कोई भी फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। Normally, the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin, etc. are considered useful selectable marker for E. coli. The normal E. coli cell do not carry resistance against any of these antibiotics. तो E. coli में normal E. coli के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता, बट आर्टिफिशियली हम उसके प्लाज्मा में ये जीन्स डाल सकते हैं जो कि फिर सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरह एक्ट कर सकती हैं एंटीबायोटिक में। फिर वो एबिलिटी आ जाएगी इन पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस की। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी which cells are transformed and which cells are not transformed. So now third an important property of vector is cloning sites. Cloning sites, in order to link the alien DNA, the vector need to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. तो अगर हमें कोई फॉरेन डीएनए को लिंक करना है वेक्टर में तो उसके लिए पर्टिकुलर एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए, ताकि उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस वाली एंजाइम को जब हम डालें तो फिर वहां पर कट प्रोड्यूस हो, और फॉरेन डीएनए को भी और वेक्टर डीएनए को भी दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने पर सेम कट प्रोड्यूस हो, कोएसिवेंस प्रोड्यूस हो, जिससे कि अगर वो सिंगल होगी तो सिंगल साइट पर, पर्टिकुलर साइट पर ही कट प्रोड्यूस होगा, पर्टिकुलर साइट पे ही ज्वाइनिंग हो पाएगी फॉरेन मॉलिक्यूल की। तो क्लोनिंग का प्रोसेस श्योर होगा, उसकी हमें लोकेशन भी पता होगी और कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स कहीं पर अटैच नहीं करेगी, सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिंगल साइट पे ये फॉरेन डीएनए को अटैच करेगी। The ligation of alien DNA is carried out at a single restriction site present in one of the two antibodies. और अगर हमने एक दो में से किसी एक रेस्ट्रिक्शन हमने दो में से किसी एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर मिलने वाली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर कट प्रोड्यूस कराया, तो जैसे यहाँ पर PBR 322 का डायग्राम दिया हुआ है, कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है और इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दो
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रीजन है। इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में एग्जांपल दिया हुआ है बुक में एनसीईआरटी में कि फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर पीबीआर 322 में BAM-H1 में से अगर कट प्रोड्यूस कराते हैं तो यहाँ पर हम डीएनए को अटैच कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें ये डीएन फॉरेन डीएनए इधर इंसर्ट हुआ होगा तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये जो भी वेक्टर ये वाला वेक्टर जिसने फॉरेन जीन को यहाँ इंकॉर्पोरेट किया है ये वेक्टर जिस भी बैक्टीरिया में जाएगा वो वेक्टर एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो हो पाएगा बट इट कैन नॉट ग्रो इन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम or transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on the medium containing tetracycline। अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाले पे सिर्फ टेट्रासाइक्लिन वाले पे ग्रो कराएंगे तो वो कॉलोनीज नहीं आएंगी जो रिकॉम्बिनेंट्स की है। तो इस वजह से हम दोनों रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन ampicillin containing medium but not that in the tetracycline containing medium। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे जिसमें किसी भी साइट में कोई फॉरेन जीन नहीं वो दोनों पे कॉलोनीज बना सकते हैं क्योंकि वो दोनों के रेजिस्टेंस होंगे अभी तक। तो जब हम ऐसा करेंगे जब हम प्लेटिंग करेंगे इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम कंपेयर करेंगे जब कॉलोनीज को तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सी कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट है और कौन सी कॉलोनीज रिकॉम्बिनेंट नहीं है। So gene gets inactivated due to insertion of the alien DNA and helps in selection of recombinants। तो इस तरीके से हमें पता चलता आता है इस तरीके से हम सिलेक्ट कर पाते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ क्यूबरसम प्रोसेस। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस लगता है एंटीबायोटिक का मदद से क्योंकि हमें सिमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ती है दो प्लेट्स पे और डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डालकर। Therefore, alternatively selectable marker have to be developed which differentiate combinants from the non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। तो अब हम एक ऐसा मेथड यूज करते हैं जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी एबिलिटी के ऊपर कि वो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें एक कलरफुल सबस्ट्रेट दिया है तो ग्रो होने के लिए अगर हमने उनके मीडिया में कलरफुल सबस्ट्रेट डाला है और अगर उसको वो यूज कर रहे हैं कलरफुल सबस्ट्रेट को कलरफुल कॉलोनीज बना रहे हैं तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी वो उसके अंदर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बिकॉज हम ऐसी ही जीन के अंदर डीएनए डालेंगे ऐसी ही जीन को डिस्ट्रॉय करेंगे कि जो उस सबस्ट्रेट को यूज करने वाली एंजाइम बनाती होगी और अगर हमने उस जीन को डिस्ट्रॉय किया और हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया तो फिर वो एंजाइम बन नहीं पाएगी तो सबस्ट्रेट यूज नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट यूज नहीं होगा तो जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो सक्सेसफुल होगा और रिकॉम्बिनेंट्स वाले कंटेनिंग वेक्टर तो व्हाइट कॉलोनीज बनाएंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वाले ब्लू कॉलोनीज बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना है हमें फॉरेन डीएनए उस इस एंजाइम की जीन में डालना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने वाली जीन में डालना है तो जिसकी वजह से ये जीन क्या हो जाएगी इनएक्टिवेट हो जाएगी और सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी एंजाइम को और इस मेथड को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहेंगे। और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट अगर होगा प्लाज्मिड की कॉलोनीज में तो बैक्टीरिया में कोई इंसर्ट नहीं दिया होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट जो बैक्टीरियाज होंगे वो ब्लू कॉलोनीज बनाएंगे और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट्स रिजल्टिंग टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्योंकि उनकी वो जीन खराब हो गई है तो अब वो सबस्ट्रेट ले ही नहीं सकते तो इस वजह से ब्लू कलर की कॉलोनीज की जगह इनएक्टिवेशन होने की वजह से सिर्फ वाइट कलर की कॉलोनीज बनती हैं तो वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्लोनिंग के लिए कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं?
तो vectors में you may be surprised to know that we've learned the lesson of transferring genes into plants and animals from bacteria and viruses, which have known this for ages. तो हमने वायरसेस को यूज करना है, बैक्टीरियाज को यूज करना है, ताकि हम प्लांट्स और एनिमल्स में जीन डाल सकें, फॉरेन जीन डाल सकें. So how to deliver to genes to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria and viruses want. तो हम किस तरीके से करेंगे इसको? फॉर एग्जाम्पल दिया है कि एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेशियंस नाम का एक पैथोजन होता है, जो नेचुरल पैथोजन है प्लांट का, जो अपना खुद का डीएनए, जिसको कहते हैं टीडीएनए, उसे नॉर्मली प्लांट सेल्स में डाल देता है, जिसकी वजह से प्लांट में ट्यूमर हो जाते हैं, उसको एक डिजीज हो जाती है एंड ट्यूमर ग्रोथ होने लगती है. तो दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय पैथोजन, और ये ट्यूमर सेल्स उस पैथोजन के लिए खुद कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस केमिकल्स बनाते हैं. सिमिलरली रेट्रोवायरस में भी ये एबिलिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैंसरस सेल्स में, अपना डीएनए एनिमल सेल्स में डाल के. Their eukaryote, a better understanding of art of delivering genes by pathogens in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogens into useful vectors for delivering the gene of interest. जब हमने इन्हें और डीपर लेवल पे स्टडी किया, तो हम इनको समझ पाए कि किस इनमें कैसी कौन सी वाली जीन्स ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनके डीएनए को पेस्ट करने के लिए होस्ट के डीएनए में. तो अब हम उन जीन्स की मदद से ही, ऐसे डीएनए की मदद से जो पेस्ट हो जाता है होस्ट में, उसको डिसआर्म करके उसमें से हार्मफुल जीन हटाकर हम यूजफुल जीन उसमें डालकर और फिर नेचुरल इन्फेक्शन कर देते हैं. तो इसकी वजह से हम वायरसेस को, बैक्टीरिया को यूज कर लेते हैं एज अ natural vector for cloning genes into plants and animals. So here it's written the tumor-inducing plasmid (TI) plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector. TI plasmid को as a cloning vector use करा जाने लग गया है, जिसकी वजह से जीन्स को डिलीवर किया जाता है of our interest, हमारे इंटरेस्ट के जीन को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं. सिमिलरली रेट्रोवायरसेस को भी डिसआर्म किया जाता है, उनकी इन्फेक्शियस पोर्शन को हटा दिया जाता है रेट्रोवायरस के, और यूजफुल जीन को उसमें डालकर वंस अ जीन और ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन ligated into suitable vector, it is transferred into a bacterial plant or animal host. यहाँ पर इन वेक्टर्स को सुटेबल बनाकर और फिर इनको होस्ट में डालकर बैक्टीरिया में या फिर वायरस में, और फिर इनको एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में डायरेक्ट इन्फेक्शन करने के लिए एक्सपोज कर दिया जाता है. इसकी वजह से जब ये खुद अपना टाई प्लाज्मिड टीडीएनए पार्ट अटैच करेंगे प्लाज्मिड में, प्लांट में, तो ये उसके थ्रू फॉरेन जीन को अटैच कर देंगे प्लांट में. और ऐसे ही रेट्रोवायरस जब अपना डीएनए पार्ट अटैच करेंगे हम एनिमल सेल्स में, तो वहां पर हमारी फॉरेन जीन लगी हुई होगी, तो फॉरेन जीन चली जाएगी. अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टूल है, जो कि है कॉम्पिटेंट होस्ट. तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉम्पिटेंट होस्ट. तो हम कॉम्पिटेंट होस्ट से क्या समझते हैं और कैसे बनाया जाता है कॉम्पिटेंट होस्ट. तो सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स. डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और वो सेल मेम्ब्रेन से ऐसे ही पास नहीं हो सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, वाटर रिपेलेंट, उनके हेड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड्स, तो प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डालने के लिए, फोर्स करने के लिए, हमें पहले होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल्स को ही कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ready करना पड़ेगा to take up the DNA. This method or process of making the cells ready or accept the DNA or take the DNA is known as making the host competent. How it is done? There are various methods. Number one is chemical method. Here it is written, this is done by treating them with specific concentration of divalent cations
कैल्शियम जैसे पॉजिटिवली चार्ज डायमेथिल कैटायन से में ट्रीट किया जाता है मेम्ब्रेन में, फिर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स लग जाते हैं जिसकी वजह से नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऑटोमेटिकली क्लोज आता है मेम्ब्रेन के थ्रू और अटैच होने की कोशिश करता है। बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन इट सेल वॉल, और आराम से उन पोर्स के थ्रू सेल वॉल में पोर्स के थ्रू वो चला जाता है। अब सेकंड मेथड हीट शॉक। हीट शॉक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी फोर्स किया जाता है सेल्स के अंदर, होस्ट सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्स किया जाता है। और इन कैसे किया जाता है, सेल्स को हीट शॉक देकर, कभी ठंड में कभी गर्मी में रखकर 42 डिग्री सेल्सियस पे कभी ठंड में रखकर उनको शॉक देते हैं, जिसकी वजह से बाहर जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल होता है वो सेल्स के अंदर चला जाता है और देन वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेता है शॉक की वजह से, क्योंकि शॉक भी फोर्सफुली सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं। दिस इज नॉट द ओनली द वे। नेक्स्ट मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। डीएनए को डालने का होस्ट सेल में, इसे माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल्स में, न्यूक्लियस में डायरेक्टली डाल दिया जाता है एनिमल सेल्स की रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन अनदर मेथड suitable for plant cells are bombarded with high velocity microparticles। एक और मेथड में जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड कहते हैं, यहाँ पर एक जीन गन यूज करी जाती है जिसमें माइक्रो पार्टिकल्स, गोल्ड कोटेड डीएनए पार्टिकल्स, टंगस्टन कोटेड डीएनए पार्टिकल्स होते हैं, जिनको एक गन जैसे इंस्ट्रूमेंट में फीड किया जाता है और फिर एक ट्रिगर दबा के शॉट करा जाता है। ज्यादातर ये प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करती है, इस डीएनए मॉलिक्यूल को वो प्लांट टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कर देती है। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियल नेचुरल बैक्टीरिया के थ्रू इंफेक्शन कराने से या डिसआर्म्ड वायरसेस के थ्रू हम जब सेल्स को एक्सपोज कराएंगे, इन्फेक्ट कराएंगे, तो उससे भी डायरेक्टली ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, डायरेक्टली होस्ट जो है वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ आपके तीनों जो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें पहला टूल तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स था जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, और बाकी दो टूल्स, एक क्लोनिंग वेक्टर्स और दूसरा कॉम्पिटेंट होस्ट, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके स्टेप समझेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और अगर आपको कुछ समझ में आने में प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, you can ask your doubt, and if you like the channel, if you press the like button if you like the video, and subscribe my channel. Thank you.